بلوچستان جہاں مزاحمت میں شدت آ رہی ہے، بلوچستان جہاں ریاستی جبر فلک کو چھو رہا ہے، بلوچستان جہاں بیٹیاں اور مائیں تک محفوظ نہیں ہیں، بلوچستان جہاں عوام گھروں میں محصور ہیں، بلوچستان جہاں خوف اور دہشت کی فضا عروج پر ہے، بلوچستان جہاں ڈر اور خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں، شاہراہیں آگ اگل رہی ہیں، نام نہاد حکام قلعے میں قید ہیں، فورسز مورچوں میں بند۔ کس طوفان کی آمد کا خوف ہے؟ جی، یہ خوف ہیرو 3 کا ہے، جس کی مبینہ آمد ہے۔ ریاست اور حکومت کے خوف کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس اگست میں نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ بلوچستان میں ہر طرف خوف کا عالم ہے، کرفیو ہے، انٹرنیٹ سروس معطل ہے، ٹرین سروس معطل ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، کاروبار بند ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک ناکام سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور بلوچ جنگجو اپنے اہداف کے حصول میں پوری مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ایک اہم ترین موضوع ہوگا، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی اس سوال پر ضرور ڈسکس کریں گے کہ کیا پاکستان واقعی میں ناکام سیکیورٹی اسٹیٹ ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر پچھلے 3.5 سال میں 7,600 ارب روپے، جی ناظرین 7,600 ارب روپے اس ملک کے عوام کے خون پسینے کی دولت لٹائی گئی، اور بدلے میں عوام کو کیا ملا؟ 3,900 سے زیادہ لاشیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جبر اور جنگ، کشمیر میں خون کی ہولی۔ فیکٹ یہ ہے کہ بلوچستان اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں ننگی مداخلت، عدلیہ کی بربادی اور آئین میں زبردستی ترامیم کروانے کا وہ بھیانک انجام سامنے آ چکا ہے، جس نے ملک کی سلامتی کے پورے ڈھانچے کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی شرمناک کارکردگی کو ایکسپوز کیا ہے۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2026 کے چونکا دینے والے حقائق نے رپورٹ کے مطابق پاکستان افریقی ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ کر دنیا میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں نمبر 1 پہ آ چکا ہے۔ جی ناظرین، پاکستان اس وقت نمبر 1 پہ ہے۔ فیکٹ یہ ہے کہ رپورٹ نے فیلڈ مارشل اور ان کی پوری ٹیم کی کارکردگی پر ایسا تماچا مارا ہے جو ادارہ سوات، وانا، کلات اور کشمیر کی معدنیات ہڑپ کرنے کے لیے قوانین بدلوا کر، انسداد دہشت گردی قوانین میں ترامیم کروا کر بھی اپنی گرتی ہوئی رٹ کو نہ بچا سکا، اس کی بندوق، سینسرشپ اور اندھی جبر کی روایتی ماڈلز اب مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں۔ یہ فیکٹ ہے کہ موجودہ رجیم مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے، لیکن سوال یہاں پر ایک اور بھی ہے کہ بلوچ جنگجوؤں کے ممکنہ اہداف آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی سیکرٹ رپورٹ کی جو خفیہ اداروں نے جاری کی ہے، اور اس میں ایک بہت سنسنی خیز قسم کے حقائق بیان کیے گئے، جس کے مطابق بلوچ جنگجوؤں کا ممکنہ اہداف کیا ہو سکتے ہیں۔ کیا بی ایل اے نے واقعی میں کچھ بہت بڑا کرنے کی تیاری کر رکھی ہے؟ کیا اہداف کے ممکنہ طور پر ریکی بھی ہو چکی ہے؟ خفیہ اداروں کی رپورٹس میں ایسا کیا ہے کہ بلوچستان بھر میں ہائی الرٹ ہے؟ کیا بی ایل ایف بھی بی ایل اے کے ساتھ ہوگی یا بی ایل ایف کا ہدف کوئی اور ہوگا؟ اگلا وار 14 اگست کو یا 26 اگست کو ہوگا؟ اس حوالے سے اہم اور سنسنی خیز حقائق بھی آج کے ویلاگ کا حصہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ آج منگل 11 اگست 2026 ہے۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میں کہاں غلط ہوں یا مجھ سے کہاں غلطی سرزد ہو رہی ہے، اور میرے ویلاگس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، پروگرام کی ابتدا میں وہی 2 ڈھائی 3 لائنیں جو میں اہم ترین آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہیں کہ وزیر داخلہ
मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि उन्होंने पंजगूर में बहुत बड़े ऑपरेशन के बाद 5 बलोच शिद्दत पसंदों को जो वांटेड थे उनको मार गिराया, जबकि ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था जब 5 मस्ख लाशें नामालूम मिली थी। उनकी जब शनाख्त की गई तो उनमें से 2 अफराद ऐसे थे जो जबरी तौर पर गुमशुदगी का शिकार हुए थे, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। तो इसलिए कम से कम इस तरह के झूठे ऑपरेशंस यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के बाद इस तरह के झूठे दावे करना रियासती साख के मुंह पर क्या तमाचा नहीं है। हत्ता कि बलूचिस्तान के अवाम उस SHO की आमद है जिसने बलूचिस्तान के हालात को ठीक करना था, लेकिन लगता है कि वो SHO शायद अभी तक भर्ती ही नहीं हुआ। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में क्या होने जा रहा है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान में BLA BLF के अहदाफ क्या हैं, इससे पहले कि मैं आपके सामने तफसीलात रखूं कि मुमकिन जो आइंदा जो टारगेट हो सकता है मुमकिन तौर पर वो क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी खिदमत में एक अहम तरीन रिपोर्ट रखना चाह रहा हूँ। जो सवाल मैंने इब्तिदा में उठाया था कि क्या पाकिस्तान नाकाम सिक्योरिटी स्टेट है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त ज़ेर बहस है और उस पर बात की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस मौजू पर अब तो नेशनल मीडिया पर भी बात की जानी चाहिए कि क्या पाकिस्तान एक नाकाम सिक्योरिटी स्टेट है। नाज़रीन, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में बेजा मुदाखलत, ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स आइन में जबरी तौर पर मनपसंद तरामीम करवाने, अदलिया की खुद मुख्तारी को तबाह करने, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को जंग में रखने और रियासती इदारों पर ज़बरदस्ती कब्ज़े की होलनाक नतायज अब पूरी शिद्दत के साथ सामने आने लगे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत उनकी पूरी स्ट्रेटेजिक टीम, जी नाज़रीन, उनकी पूरी स्ट्रेटेजिक टीम के पेशावराना कारकर्दगी पर अब आलमी सतह पर सवाल उठने लगे हैं और एक ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त सामने है, क्योंकि दिफाई अखराजात में अंधाधुंध इजाफे के बावजूद मुल्की सलामती का मॉडल मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है और ये जो दिफाई बजट में बेपनाह इजाफा किया गया, ये सिक्योरिटी फोर्सेस यानी फील्ड मार्शल या उनकी टीम की जो है वो ख्वाहिश या उनके इजहार या उनकी डिमांड पर किया गया था। यानी दिफाई बजट बढ़ाकर 3000 अरब रुपए किया गया रवा माली साल 2025-26-27 के हवाले से, यानी 10.8 अरब डॉलर, जबकि गुज़िश्ता 3 सालों में यानी अगर हम देखें तो माली साल 2024-25 से लेकर 26-27 तक के दिफाई अखराजात पर मजमूई तौर पर 7,672 अरब, जी नाज़रीन, 7,672 अरब रुपए यानी 34.05, जी नाज़रीन, 34.5 अरब डॉलर लुटाए जा चुके हैं। लेकिन इन खरबों रुपए की तारीखी बजट का नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान आज दुनिया भर में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में नंबर 1 पे आ चुका है, जिससे यानी इससे साफ वाज़े होता है कि जब इदारे अपनी आइनी हुदूद छोड़कर सियासत, पार्लिमान पर कंट्रोल और सियासी जमातों को अपना दुम छल्ला बनाने में मसरूफ़ हो जाएं तो वो जंगी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं, जिसका शर्मनाक एक वजह यह भी है कि जब इस्टेब्लिशमेंट खुद बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को प्रोमोट करने में मुलविस हो तो नतायज ऐसे ही निकलते हैं। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में मैंने एक रिपोर्ट रखी थी जिसमें ईरानी एजेंसी की तरफ से मैंने एक रखा था कि किस अंदाज में जो अफ़गानिस्तान से लोगों को लाकर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम आगे चलते हैं नाज़रीन, आगे कहा जा रहा है कि रियासती रिट के इस बदतरीन नाकामी पर ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में कायम आलमी तहकीकाती इदारे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की जानिब से जारी करदा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 ने मुख्तदर हल्कों यानी इस्टेब्लिशमेंट के तमाम दावों का जनाजा निकाल के रख दिया है। इस आलमी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 163 ममालिक में से दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क बनकर यानी 8.574 स्कोर के साथ पहली पोजीशन पर आ गया, जिसने अफ्रीकी ममालिक अपना बर्किना फासो को भी पीछे छोड़ दिया। अगर हम पिछले 3 सालों के सनसनीखेज आदाद शुमार का मुआवजा करें तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कारकर्दगी का पोल खुल जाता है, जहां साल 2023 में पाकिस्तान के अंदर 782 दहशतगर्दाना वाक़यात में 1003 हलाकतें रिकॉर्ड की गईं। वहीं साल 2024 में गिराफ में मज़ीद होलनाक इजाफा होकर 940 वाक़यात में 1080 हलाकतों तक जा पहुंचा
اور اب سال 2024 کی تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں یہ ریکارڈ 1045 دہشت گردانہ حملے پیش آئے، جس کے نتیجے میں 1139 افراد جاں بحق ہوئے، جو 2013 کے بعد سے ملک میں جانی نقصان کی بلند ترین اور مہلک ترین سطح بتائی جا رہی ہے۔ انڈیکس میں واضح کیا گیا ہے کہ 2021 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھا گیا، جبکہ تحریک طالبان پاکستان، بلوچ لبریشن آرمی BLA اور داعش خراسان جیسی کالعدم تنظیمیں ان پرتشدد کارروائیوں میں سب سے زیادہ متحرک اور ہلاکت خیز ثابت ہوئی ہیں۔ صرف پچھلے 3 سالوں کے جانی نقصانات تک ہم اس بات کو محدود نہیں کریں گے، بلکہ رواں سال 2026 کے پہلے 7 مہینوں کا اگر ہم ڈیٹا آپ کے سامنے رکھیں گے تو یقین مانیں آپ بھی چونک جائیں گے۔ ڈیٹا یہ ثابت کر رہا ہے کہ عسکری شدت پسندی اب روایتی قابو سے باہر نکل کر باقاعدہ ایک اوپن وار زون کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ رواں سال جنوری سے جولائی 2026 کے درمیان بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مواضع پر مجموعی طور پر ریکارڈ کیے گئے 1339 سے زائد پرتشدد واقعات پیش آئے ہیں، جن میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد صرف 7 ماہ میں 2800 ہے۔ جی ناظرین، 2800 ہلاکتیں صرف 7 ماہ میں۔ میرے خیال میں یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ اب اس سے چلیں تو اس خون ریز منظرنامے میں سب سے ہولناک پیش رفت یہ سامنے آئی کہ سیکیورٹی فورسز کی شدید ترین انسداد دہشت گردی آپریشنز کھربوں روپے کے بجٹ کے دعووں کے باوجود اکیلے بلوچستان میں جنوری سے جولائی کے دوران 765 پرتشدد حملے ریکارڈ کیے گئے، جن میں 1600 سے زائد ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں اسی مدت کے دوران 574 حملوں میں 1196 افراد جاں بحق ہوئے۔ سال 2026 کی ابتدائی 7 مہینے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مجموعی دفاعی اسٹریٹجی کی مکمل ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ کھربوں روپے ہضم کرنے کے بعد بھی ریاستی رٹ کا گراف اکیلے جولائی کے مہینے میں 438 ہلاکتوں کے ساتھ تاریخ کی بدترین سطح پر گر چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس تقابلی جائزے سے یہ المیہ مزید واضح ہو جاتا ہے کہ جو ادارہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، سوات، وانا اور کشمیر کے معدنیات اور قیمتی وسائل پر غاصبانہ قبضے کے لیے آئین اور قوانین میں زبردستی ترامیم کروا کر بھی ان علاقوں کے عوام کا دل جیتنے میں ناکام رہا، اس کے پاس اب صرف جبری گمشدگیوں اور اندھے ریاستی جبر کا واحد راستہ بچا ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں سوات اور وانا کے اندر شروع ہونے والے بڑے عوامی جرگوں اور مکران سے لے کر کوئٹہ تک بلوچ یکجہتی کمیٹی کے تاریخی دھرنوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بارود اور گولی کی پالیسی اب کام نہیں کر رہی۔ عالمی منظرنامے پر جہاں دہشت گردی کے مرکزی محور مشرق وسطیٰ سے منتقل ہو کر افریقہ کا خطہ ساحل بن چکا ہے، جہاں دنیا کے سب سے مہلک تنظیم داعش 15 سے زائد ممالک میں تباہی مچا رہی ہے، وہیں پاکستان کا افریقی ممالک میں اپنا برکینا فاسو میں 8.324، نائجر 7.816، نائجیریا 7.792 اور مالی 7.586 کو پیچھے چھوڑ کر ٹاپ پر آنا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جنگی صلاحیتوں پر بہت بڑا تمانچہ ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب تک مقتدر حلقے معاشی ناکہ بندیاں، سینسرشپ، آئین کی معطلی کا یہ خون ریز کھیل بند کر کے حقیقی جمہوری اور سیاسی حل کی طرف نہیں بڑھتے، اربوں ڈالر کا یہ بجٹ ملک کو تباہی سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا موجودہ رجیم جو مکمل طور پر ہر محاذ پر ناکام ہوئی ہے، یعنی معاشی تباہی پاکستان جس انداز میں دیکھیں، جو ملک خود دہشت گردی سے متاثرہ ہو اور دنیا کے انڈیکس میں نمبر 1 پہ ہو، وہ ملک چلا ہے دوسرے ممالک میں امن قائم کروانے اور اسلامک نیٹو بنوانے۔ شرم آتی ہے یار یہ چیزیں سوچ کر بھی۔ تو اس طرح جس طرح میں نے آپ سے ابتدا میں بات کی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے بلوچستان کے حوالے سے، لیکن بلوچستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آج 11 اگست ہے اور 11 اگست کا دن بلوچستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ بلوچستان اور بلوچ تحریک اب ایک اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں
डर और खौफ की कोई गुंजाइश नहीं है। बलोच कौम अपने लोगों की बका और ख्वाबों के मुहाफिज बन चुका है। आज 11 अगस्त को दुनिया भर में आबाद बलोच कौम और तमाम आज़ादी पसंद क़ुव्वतें रोज़ तजदीद अहद बलोचिस्तान और अपना तारीखी योम आज़ादी भरपूर जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया गया था और बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत की हैसियत हासिल हुई थी। लेकिन कुछ अरसे बाद 27 मार्च 1948 को रियासत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई पहली फ़ौजी कार्रवाई की और बज़ौर ताकत बलूचिस्तान पर यानी उस पर कब्ज़ा कर लिया। बलूचिस्तान की आज़ादी का ख़ात्मा हुआ। बलोच 11 अगस्त को अपने योम आज़ादी के तौर पर याद करते हैं। अगरचे आज बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत नहीं है, लेकिन अपनी सरजमीन और उसकी आज़ादी के लिए बलोच कौम के फ़र्जंदों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और ये जदोजहद आज भी मुख्तलिफ़ सूरतों में जारी है। आज़ादी और अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करने का हक़ हर कौम का बुनियादी हक़ है। हमारा ईमान है कि एक बलोच अपनी सरजमीन की आज़ादी हासिल करने में कामयाब होगा और अपने वतन का खुद मालिक होगा। ऐसा कहा जा रहा है जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो एक डिजिटल वॉर चल रही है उसमें इस तरह के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इस्टेब्लिशमेंट पर इस तारीख़ी दिन का ऐसा खौफ तारी है कि कोयटा समेत पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुकम्मल बंद कर दी गई हैं और कई बड़े शहरों में अमलन सख्त कर्फ्यू नाफिज है। नौशकी बाज़ार जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। पूरे इलाके में फोर्सेस और आर्मी तैनात है। हर शहरी अपने घरों तक महदूद और मैसूर होकर रह गए हैं। नौशकी के सिक्योरिटी सूरत इस कदर संगीन है कि पक्की सड़कों के अलावा शहर में दाखिल होने वाली कच्ची सड़कें भी ब्लॉक कर दी गई हैं, जबकि अपना नासिराबाद को भी बंद कर दिया गया। यही सूरत हाल पंजगुर, तुर्बत और गवादर की भी है, जहां तमाम मार्केटें बंद हैं। बसीमा में इंतजामिया की जानिब से बाकायदा कर्फ्यू नाफिज है। इस सफाकाना लॉकडाउन के दौरान गवादर के इलाके देखें तो पानवान और जीवनी से कलमती ख़ानदान के हवाले से एक इंतहाई तशवीशनाक इतलात सामने आई हैं, जहां उनके मुतअद्दिद घरों को बिल्डोज़रों के ज़रिए मुसम्मार कर दिया गया, जिसने मकामी आबादी में शदीद गम और गुस्से को फैला दिया है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि BLA की मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या है, उससे पहले मैं आपके सामने चंद और हक़ाइक़ रखना चाह रहा हूँ जो बहुत बड़े हैं। मंद यानी केच, बलूचिस्तान के ज़िला केच के इलाके मंद गैप की पहाड़ी पर वाक़ पाकिस्तानी FC यानी फ्रंटियर कोर के कैंप पर मुसल्लह बलोच शिद्दत पसंदों के शदीद हमले की इतलात सामने आई हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में मुतअद्दिद फ़ौजी एहलकारों की हलाकत का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। मकामी शाहिदीन के मुताबिक पहाड़ी की चोटी पर कायम कैंप से आम आबादी की जानिब शदीद और अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, जिसके बायस इलाके में शदीद खौफ और हिलास फैला हुआ है। वाज़ेह है कि इस वाक़े से कबल हुकूमत बलूचिस्तान ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 11 अगस्त से 14 अगस्त तक आवाम को बिला ज़रूरत घरों से बाहर न निकलने और नकलो हरकत महदूद रखने की हिदायत जारी की थी। याद रहे कि मंद का ये इलाका सियासी एतबार से भी अहम है, जहाँ से साबिक वफाकी वज़ीर दिफा ज़ुबैदा जलाल, मौजूदा सूबाई रुकन असम्बली और इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो तर्जमान मीना मजीद का ताल्लुक़ है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि इस पहाड़ी के ऊपर पाकिस्तान फ्रंटियर कोर ने अपना कैंप बनाया हुआ है। इसके अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ज्यूनी में यानी गवादर के इलाके ज्यूनी में एक थाने पर बहुत बड़ा हमला किया है और उसमें एक गाड़ी को आग लगा दी और थाने का सारा रिकॉर्ड नजर आतिश कर दिया है। और BLA की तरफ से इस कार्रवाई की बाज़ाब्ता तौर पर एक वीडियो भी रिलीज़ की गई है। लेकिन ये खबरें नहीं है। खबर मज़ेदार ये है कि एक शेर की कछाड़ से शिकार छीनना या शेर की कछाड़ में हाथ डालकर शिकार छीनना, ये होती है असल बहादुरी। फ़ारूक मोहम्मद हसनी, जी नाज़रीन, फ़ारूक मोहम्मद हसनी का कत्ल इसको कहते हैं शेर की कछाड़ में हाथ डालकर शिकार छीनना। कोयटा में शदीद नाकाबंदी, चेकिंग के बावजूद और चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की मौजूदगी के बावजूद जंगजुओं ने अहम रियासती डेथ स्क्वाड के कारिंदे व सरगना खुजदार और कोयटा के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक बाअसर और मुतनाज़ शख्सियत को सरियाब मिल के करीब फायरिंग करके मोहम्मद फ़ारूक हसनी को कत्ल कर दिया है। उन पर बलोच कौम परस्तों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से इल्ज़ाम था कि वो खुजदार और मुल्हका इलाकों में सियासी व तालिब इल्म कारकुनान की
कि जबरी गुमशुदगियों, कत्ल और निर्जीव टार्चर सेल चलाने वाले मुसल्लह ग्रुप का अहम हिस्सा थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये वाक़या सरियाब मिल के करीब उस वक्त पेश आया जब नामालूम हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और वो ज़ख्मों के ताब न लाते ही पहले मौके पर ही जाँ बहक हो गए। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अब आगे क्या होगा। जिस अंदाज में 7 अगस्त के हवाले से चीज़ें कही गई, अगर मामला सिर्फ 7 अगस्त तक होता तो मैं समझता हूँ कि मामले को 7 अगस्त तक ही ख़त्म कर दिया जाता। यानी सिक्योरिटी को या जिस अंदाज में कोयटा को एक रेड जोन बनाकर बंद कर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि 7 अगस्त का अगर इशू होता तो ये 7 अगस्त तक ख़त्म हो चुका होता। लेकिन इस चीज़ को बढ़ाने का मतलब क्या है? नाज़रीन, मेरे अहम तरीन ज़राए ने ये दावा किया है कि जो है वो जो पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं उनको एक ऐसी इतलात मौसूल हुई हैं कि BLA और BLF की तरफ से बलूचिस्तान में एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। और इस हवाले से आपको याद होगा कि अपना जो एक गैर मुल्की अखबार का मैंने हवाला भी दिया था, इंडिपेंडेंट था या पता नहीं, डिप्लोमेट में भी इस चीज़ का अंदिया दिया गया था कि BLA हीरो ऑफ 3 की तैयारी कर रही है। इस वक्त ये जो खौफ है, ये जो दहशत है, ये जो सनसनी है, ये जो कर्फ्यू है, ये जो ट्रैफिक बंद है, ये जो इंटरनेट बंद है, ये जो ट्रेन सर्विस बंद है, ये जो लोगों का घरों से निकलना बंद है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा खौफ है और ये खौफ है हीरो ऑफ 3 का। आपको याद होगा कि हीरो ऑफ 2 में BLA ने जो पहली कार्रवाई की थी उसमें बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा समेत 18 शहरों पर बैक वक्त हमला किया था। ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी BLA की। यानी जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद ये जो हीरो ऑफ 2 था ये बहुत बड़ा था और अब हीरो ऑफ 3 इससे भी कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है। ऐसी इतलात मौसूल हो रही हैं सीक्रेट एजेंसीज़ को और ऐसे थ्रेट अलर्ट्स मौसूल हो रहे हैं जिसकी बुनियाद पर बलूचिस्तान भर को में एक बहुत बड़ा हाई अलर्ट, ऐसा हाई अलर्ट जो बलूचिस्तान में शायद ही नवाब अकबर बुगटी या जाफर एक्सप्रेस के सानिया के बाद शायद ही कभी देखने को मिला हो। लेकिन इस वक्त जिस अंदाज में सब कुछ चल रहा है वहाँ सवाल ये उठ रहा है कि क्या इसमें तमाम बलोच जंगजू ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम करेंगी या BLA BLF मिलकर काम करेंगी, बाकी दीगर महाजों पर होंगे? इस हवाले से बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं और इस पर बहुत बड़ा काम किया जा रहा है क्योंकि जो थ्रेट अलर्ट्स जारी हुए हैं या जो रिपोर्ट मुरतब की गई है उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया कि जो जिन अहदाफ पर को निशाना बनाना है उनकी बाज़ाब्ता तौर पर रेकी हो चुकी है। अगर रेकी हो चुकी है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये ख़तरे की घंटी है और इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आज 11 अगस्त था, आज एक बहुत बड़ा खौफ का आलम था कि कोई बहुत कुछ बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन बहरहाल जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बुनियादी तौर पर हम तशद्दुद के हामी नहीं हैं। बुनियादी तौर पर फरवाज NB न्यूज़ किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई को प्रोमोट करने की पॉलिसी नहीं रखता, लेकिन हम सिर्फ आपके लिए वो हक़ाइक़ रखते हैं जो बलूचिस्तान की सरज़मीन पर या बलूचिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद के अंदर वक़ू पज़ीर हो रहे होते हैं। हमारा काम बलूचिस्तान के हक़ाइक़ को उन बलोच भाइयों तक पहुँचाना है जो दुनिया भर में कहीं भी रह रहे हों और उनको पूरे सच और पूरी दयानतदारी के साथ और नपे तुले अंदाज में पेश करना है। फिर वक्त के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।